السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں جانور قسط نمبر 5۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ 9:30 بجے کے قریب بازلر اپنے چچا کے ساتھ آ گیا۔ مجھے کھڑے فرش پر پڑا دیکھ کر سلیل چودھری اپنے بھتیجے کی طرف ایک بار گھوما، شاید اس چھوٹی حرکت پر اسے خاموش ملامت کرتا تھا۔ بازلر نے فوراً نوکر کو آواز دی، پھر خود بھی گراج سے نکل گیا۔ وہ آیا تو نوکر سے 2 کرسیاں اٹھا کر لایا تھا، ایک وہ خود اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے انتظار کیا جب چچا چودھری بیٹھ گیا، اس کے بعد یہ سعادت مند بھتیجا جو اپنی لائی ہوئی کرسی پر بیٹھا۔ سلیل چودھری نے ایک دم بات شروع کر دی۔ شیر خان، یہ تو ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ ہمارے کارخانے سے تمہیں نکالے جانے والے کون لوگ ہیں۔ اتنا تو پہلے ہی معلوم تھا کہ جانوروں کے اسمگلر بیوپاری اور کسائی بھائی ہیں۔ اس 15 روز میں ہم انہیں اور اپنے ملازمہ صورت روپالی کو بھی گھیر لیں گے۔ کپڑے والوں سے پہلے ہی حساب چکتا کر لیا ہے، اب تو دونوں بڑی معافیا مانگ رہے ہیں، دکان ہی جل گئی ان کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی چودھری صاحب، تمہاری کیا بات ہے؟ دور تک تمہارے جال پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے کک کو اپنے گینگ میں تم نے کب سے بھرتی کر لیا تھا کہ ہمارے اور نوکر بھی تم سے مخبری کی تنخواہ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں مگر سب رقم نہیں خرچنی پڑتی، کچھ ویسے ہی دوستی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں جیسے وکیل صاحب کا منشی مسعود علی۔ وہ بولا، ہاں جیسے مسعود علی، تم نے دیکھا وہ ہمارا بنگالی بھائی نہیں، پھر بھی بات جانتا ہے کہ وقت کا کیا تقاضا ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب مجھے بھی تو بتائیے کہ وقت کا تقاضا آخر ہے کیا؟ اس مار پیٹ سے اور بار بار قید میں ڈالتے رہنے سے تو آپ مجھے بھی کچھ نہ کچھ سمجھا پائیں گے۔ وہ رسانے سے کہنے لگا، شیر علی، تمہیں کچھ نہیں سمجھانا اصل میں تمہارے باپ کو ہے، تم وسیلہ ہو ان تک پہنچنے، انہیں قابو کرنے کا۔ میں نے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا، وہ کب تک قابو آ جائیں گے؟ وہ بولا، جیسے ہی تم نے بارڈر پار کیا انہیں خبر پہنچا دی جائے گی۔ بارڈر؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، مجھے کون سا بارڈر پار کرنا ہے؟ سلیل چودھری کہنے لگا، ایسٹ پاکستان اور برما کے بیچ کی سرحد، اور یہ سرحد مجھے کون پار کرائے گا؟ وہ بڑی مستعدی سے بولا، ہم پار کرائیں گے یہ سرحد، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ کہا، نہ سمت بنگش تمہارا بابا قابو میں رہے گا، پھر یہ بھی ہے کہ تم سے پیچھا چھوٹ جائے گا، تم ادھر رہے تو جھوٹی سچی کہانیاں سناتے پھرو گے جو ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کہانیاں تو میں وہاں بھی سنا سکوں گا۔ نہ بالکل نہیں، وہ پہلی بار ہنسا۔ برما کی سرحدی پولیس تمہیں، تمہارے آدمی میر باز اور تمہاری داشتہ بولاری کو پکڑ لے گی۔ میری داشتہ کون؟ ارے وہی تصویر والی جسے ہم نے تمہارے لیے چنا ہے، جسے اغوا کر کے تم برما لے جاؤ گے، بولاری نام ہے اس کا۔ تو تم 3 بندوں کو غیر قانونی طور پر ایسٹ پاکستان کی سرحد سے برما میں داخل ہوتے ہوئے پولیس کو پکڑواؤ گے۔ میر باز امیگریشن پولیس کے 2 آدمی پر اپنے پستول سے فائر کر دے گا، جس سے ان کا انچارج افسر بال بچے گا۔ وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کو جواب میں فائر کرے گا تو میر باز زخمی ہو جائے گا اور بعد میں اسپتال میں دم توڑ دے گا۔ تم اور تمہاری داشتہ زندہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اوہ، ان شیطان حرام خوروں نے یہ تک طے کر لیا کہ کس کو کب اور کس طرح ٹھکانے لگانا ہے۔ بیچارہ میر باز۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس چودھری نے ابھی تک خدا بخش رائی کا نام نہیں لیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر برما کے امیگریشن قوانین کے حساب سے تم پر مقدمہ چلے گا اور کم سے کم 12 مہینے کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ 1 برس تم برما کی کسی سینٹرل جیل میں گزارو گے۔ اچھا، اور وہ عورت جس سے تم میری داشتہ بتا رہے ہو، کیا نام تھا اس کا؟ بولاری۔ ہاں، اس بولاری کا کیا ہوگا؟ وہ بہت تیز عورت ہے، ہفتے 2 ہفتے میں ہنستی بولتی، کھاتی پیتی رشوت میں کچھ لوگوں کی خدمتیں کرتی۔ وہ پھر ادھر آ جائے گی، یا ہو سکتا ہے انڈیا کے علاقے آسام کی طرف نکل جائے۔ اس کی فکر مت کرو تم۔ اچھا، سال بھر بعد برما والے مجھے چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے کیوں نہیں، بالکل چھوڑیں گے۔ پھر میرا کیا ہوگا چودھری صاحب، یہ بھی بتا دو۔ چودھری بولا، تمہیں ملک بدر کر دیں گے، وہ وہاں بھیج دیں گے جہاں تمہارا باپ ہوگا۔ میں اس کمینے موٹے کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کا تاریخ سازشی دماغ کس طرح کام کر رہا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے غصے میں سوال کیا، مگر کیوں ہوگا یہ سب، کیوں ہوگا؟ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایک طرح کی نرمی تھی۔ یہ کیوں والی بات نہیں بتاؤں گا۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ طے شدہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم بھاری رقمیں خرچ کر رہے ہیں، انتظامات ہو رہے اور تحفے دینے کے لیے بھی۔ تحفہ نہیں، رشوت۔ میں نے کہا، رشوت کہو تحفہ کچھ اور ہی چیز ہوتا ہے، جو چیز چاہے کہو۔ دونوں طرف کی امیگریشن والے بہت زیادہ رقم کھینچ رہے ہیں۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا، دونوں طرف کے کیوں؟ ادھر ایسٹ پاکستان سرحد پر جو لگے ہیں انہیں کیوں رقم کھلا رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر تم کسی طرح برما کی سرحدی پولیس کے شکنجے سے چھوٹ کر ایسٹ پاکستان کی سرحد کی طرف چل پڑے
تو ایسٹ پاکستان سرحدی پولیس کے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تمہیں گھسنے نہیں دیں گے، مجبور ہو کر تمہیں گولی مار دیں گے۔ کیوں؟ مطلب اپنے گھر واپس آنے والے کو وہ گولی کیوں ماریں گے؟ ظاہر ہے ہمیں خوش کرنے کو اور سرکاری ریکارڈ میں درج کرنے کو کہ ایک غیر ملکی جاسوس پاکستان کی سرحد میں گھستے ہوئے مارا گیا۔ میں واقعی مروب ہو چکا تھا۔ واہ، خوب پلان بنایا اور خریدے ہوئے لوگوں کی بہت لمبی لسٹ ہے۔ سلیل چودھری اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاں بہت لوگ ہیں، اچھا چلتا ہوں۔ میں نے ڈریسر کو بلایا ہے، وہ آئے گا، مرہم پٹی کر دے گا۔ بازلر کا کوئی پرانا جوڑا میرا نوکر لا کر دے گا اور وہ پہن لینا۔ یہ تو سب برباد ہو گیا۔ کچھ دیر ریسٹ کر لو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ آج ساری رات سمجھو تمہاری سفر میں گزرے گی۔ میں نے روکھے پن سے سوال کیا اور میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، مگر سلیل چودھری یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس لیے کہ پڑھے لکھے لڑکے ہو، سمجھ جاؤ گے ہماری پلاننگ اور ہمارے ہاتھ کتنے مضبوط ہیں، اور تم مزاحمت نہیں کرو گے۔ تم نے جھنجھٹ کیا، لڑے بھیڑے، ہاتھ پیر چلائے تو اپاہج بھی ہو سکتے ہو۔ مثلاً تمہارا یہ ہاتھ جو سیلنگ میں پڑا ہے، اسے شانے سے اکھاڑ کر ہاتھی کی سول کی طرح لٹکا دیا جائے تو بے حد بے حساب تکلیف ہوگی، تم شاید یہ برداشت بھی نہ کر پاؤ۔ پھر یہ بھی ہے کہ شانے پر سے سول کی طرح جھولتا ہوا بازو کچھ اچھا بھی نظر نہیں آئے گا، مطلب یہ کہ دیکھنے والے کو تو الجھن ہوگی نا۔ میں نے پوچھا، کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ نہ، دھمکانا اسے کہتے ہیں جب صرف زبان سے کہا جائے، کیا نہ جائے۔ یہاں تو یہ حال ہے بازلر۔ اس نے اپنے بھتیجے کو اشارہ کیا اور اس حرامزادے نے بیٹھے بیٹھے اپنی کرسی پر ہی اپنا پیر سیدھا چلایا جو میرے چوٹ کھائے ہوئے بازو پر لگا۔ میں کرسی سے گرا، ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بازلر سر پر آ پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، گویا سہارا دے کے مجھے اٹھانا چاہتا ہو۔ میں تکلیف میں تھا، اس لیے سمپولیو کو اچھی طرح جانتے ہوئے بھی سہارے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے بہت آسانی سے دونوں ہاتھوں میں بازو تھام لیا اور خبر نہیں کون سا داؤ مارا۔ مجھے لگا آسمان سے بجلی گری ہے اور میرا بازو منڈے کے پاس سے اتر کر جھول گیا۔ زبردست تکلیف، مسلسل اذیت میں میرا رونگٹا لرز گیا۔ میں نے چیخ ماری اور برابر چیختا رہا۔ اس غیر انسانی تکلیف کو ظاہر ہے انسان کی برداشت سے زیادہ تھی، کوئی مضبوط جانور بھی سہ نہ پاتا، ڈکارنے لگتا۔ چودھری نے درست کہا تھا، منڈے کے پاس سے میرا بازو ہاتھی کی سول کی طرح جھول رہا تھا۔ اس کی معمولی سی لرزش میرے بدن میں تکلیف نہیں، عذاب کی میخیں سی ٹھوکے دیتی تھی۔ چودھری کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آیا، جھکا اور میری چیخوں پر اپنی آواز بلند کرتے ہوئے بولا، ہمارے ساتھ چپ چاپ چلو گے، گڑبڑ نہیں کرو گے؟ میں نے ڈکارتے ہوئے وعدہ کیا، نہیں کچھ نہیں کروں گا، خدا کے لیے۔ چودھری منہ بگاڑ کر بولا، تم لوگ ہر بات میں خدا کو ڈال دیتے ہو، خیر اپنا اپنا طریقہ ہے۔ وہ بازلر کی طرف گھوما اور بولا، بس۔ بازلر اپنی گھڑی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر سے نظریں ہٹائیں تو ہاتھ بڑھا کر میرا جھولتا ہوا بازو کھینچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میرے شانے پر تھپکی دی۔ کڑک کی سی آواز آئی اور میرا بازو شانے کے جوڑ پر سیٹ ہو گیا۔ تکلیف جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح یکلخ ختم ہو گئی۔ بازلر نے گھڑی پر آنکھیں گڑائے گڑائے کہا، 40 سیکنڈ۔ میں نے دل میں جیسے چیخ کر کہا، سور کی اولاد کتے، اور بلند آواز میں ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اذیت پورے پون منٹ بھی نہیں دی گئی تھی اور میں بنگش کسی بازاری لونڈے کی طرح دل میں سے ہی گالیوں پر اتر آیا تھا۔ افسوس، اس سے دوسرے لمحے میں نے دل میں یہ لفظ دہرائے، بابا میں شرمندہ ہوں۔ خیال میں مجھے بھی بد کلامی نہیں سوچنا تھا، مگر میں یاد رکھوں گا اس بھتیجے کو اور اس چچے کو یاد رکھوں گا۔ ساری ذلت ان کے صحیح منافع کے ساتھ انہیں لوٹاؤں گا، اللہ نے چاہو تو ضرور۔ میں پسینے ہو گیا تھا اور فرش پہ پڑا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بزر الرحمان نے پھر ہاتھ بڑھایا، اس بار واقعی مجھے سہارا دینے کے لیے، مگر میں نے نفرت سے اسے گھورتے ہوئے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ بازلر خوشی میں چہکنے لگا، ہو واہ۔ چودھری نے سرزنش کے انداز میں اسے دیکھا اور بازلر کی چہکار بند ہو گئی۔ سلیل چودھری اچھا کہتا ہوا اور سر ہلاتا ہوا مطمئن گراج سے نکل گیا۔ بازلر اپنے چچا کے پیچھے کچھ دور چلا، پھر چپکے سے لوٹ آیا۔ میرے پاس آ کر رازداری سے کہنے لگا، یہ میں نے ایک پہلوان سے سیکھا تھا، استاد بدیوس زمان لاہوری سے۔ سب انہیں استاد بدلے مولا کہتے تھے۔ 80-82 سال کے ہوں گے جب مجھے پکڑی باندھ کے مٹھائی کھلا کے شاگردی میں لیا تھا انہوں نے۔ میں نے دل میں استاد بدلے مولا کی مغفرت کی دعا کی۔ انہوں نے ایک ناہندہ بدماش کو اپنا دو پیش سکھا کر فن کی مٹی پلید کی ہے، خدا انہیں معاف کرے۔ وہ 2-4 برس اپنے سینے میں دبا کے رکھتے یہ فن، اپنے ساتھ ہی لے جاتے تو اچھا تھا۔ بدماش چچا بھتیجے کے دفع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد نوکر کے ساتھ ٹریسر کمپاؤنڈر آ گیا۔ نوکر ایک سٹو اور میرے لیے پہننے کے کپڑے لایا تھا۔ ٹریسر نے پانی کھلا کر سوڈا بائی کارب سے میرے زخم دھوئے، اسپرٹ لگائی، کوئی انجیکشن دیا اور سر کے بازو کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی کر دی۔ شیشی میں بام جیسا کچھ دے کر کہہ گیا کہ بازو اور پنڈوں پر ملتے رہو، آرام ملے گا۔ نوکر اسے چھوڑ کر سامان اٹھانے آیا تو ہاتھ کا کاک روک کر مجھے دیکھنے لگا۔ بنگلہ میں بولا، صاف کپڑے پہن لو تو اپنے کپڑے مجھے دے دینا۔
मैं धोख सुखा के जिधर से फट गए हैं सुई से सीकर आऊँगा। अभी तुम्हारे लिए दलिया और मछली का शोरबा बनाया है, कपड़े बदल के वो खा लेना। थोड़ी देर बाद तुम्हें चाय दूंगा। मैंने पूछा, भाई तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करते हो? कहने लगा, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं, चौधरी साहब का आर्डर है, कहते हैं इसे खिलाओ पिलाओ फिट कर दो। मैं सोचता हूँ तुम भी इंसान हो, अगर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर कुछ ठीक ठाक खा पी के आराम कर लोगे तो मुझे स्वाब मिलेगा। मैंने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, अच्छे आदमी हो। वो बोला, नहीं, अच्छा या बुरा कुछ नहीं, अपनी ड्यूटी देता हूँ, बस मालिक को खुश रखता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, वैसे हम सबको अपने असल मालिक की फ़िक्र करनी चाहिए, वो खुश रहे तो ठीक है। वो धीरे से सर हिलाता हुआ बोला, अभी तुम मुझे आवाज़ मत सुनाओ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, किसी को मारपीट नहीं करता, सताता नहीं हूँ। अल्लाह ताला पकड़ेगा तो भद्र लोगों को पकड़ेगा, सलील चौधरी को बाजलर को पकड़ेगा। मैंने इन्हें पहले बोल दिया था कि देखो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, रोंडी खुसरे के चक्कर में नहीं हूँ, किसी मुसलमान को मारूंगा पीटूंगा नहीं, शराब के बर्तन को हाथ नहीं लगाऊंगा, और जो इधर उधर की बेशर्म औरतें तुम लोग यहाँ मंगाते हो इनको एक घूंट पानी भी नहीं पिलाऊंगा, भले वो प्यास से मर ही जाएं। हाँ, मैंने कह दिया है, मैं हरामी नहीं हूँ, दल्लाल नहीं हूँ। ये लोग बोले ठीक है मंजूर है, तो बस मुझे सही तनख्वाह मिल जाती है। ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम नहीं लेते, मैं खुश हूँ, मालिक लोग भी खुश हैं, और तुम मुझे आवाज़ मत सुनाओ, समझे। वो मुझे गुस्से से घूरता हुआ सामान समेट कर चला गया। मैंने दिल में कहा, क्या आदमी है। थोड़ी देर बाद जो वो आया, ना तो गुस्से में था और ना खुश। वो 2 जोड़ी नई हथकड़ियाँ, कुछ ताले और भैंस बांधने की लंबी सी जंजीर लेकर आया था। एक जोड़ी हथकड़ी इसने मेरे दोनों पैरों में डाल दी, दूसरी जोड़ी का एक हिस्सा मेरे बाएं हाथ में पहनाकर दूसरे हिस्से में इसने भैंस की तुलानी जंजीर मुकफ़ल कर दी। ये जंजीर वो गिराज के दरवाजे से गुजार कर कहीं बाहर ले गया और इसे नस्ब करके आया। मैंने इसके कहने पर खूब खींच कर देखा, जंजीर टस से मस नहीं हुई थी। वो कुफल भी बड़ा मजबूत अमेरिकन लाया था। एक इसने गिराज के दरवाजे के लिए रखा, दूसरा कुफल इसने गिराज में पड़े टूल बक्स में डाल दिया। कहने लगा, इसमें नोकदार तेज धार वाली चीज़ें हैं, इसलिए ताला ला रहा हूँ। सलील चौधरी ने मुझसे कहा था इसी रात में किसी वक्त रवानगी होगी, मगर दिन गुजरा, रात आई, दूसरा दिन भी आ गया। ना तो चौधरी ने अपनी मनहूस शक्ल दिखाई, ना इसके हरामखोर भतीजे ने। 5 दिन गुजर गए। नौकर वक्त से खाना पानी चाय फल सब लाता रहा। खूब आदमी था। खाते वक्त वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुँचाने की कोशिश करता। प्लास्टिक का छोटा टब लेकर आता, इसमें मेरा हाथ मुँह धुलाता, तौलिया देता, कोशिश करता कि खाना खाते हुए हथकड़ियों जंजीरों का शोर कम से कम हो, खुद चीज़ें उठा उठा कर देता जाता। एक बार कहने लगा, मैंने सलील चौधरी से पूछा है कि मैं अगर खाते हुए लड़के के दोनों हाथ खोल दिया करूं तो इसे जंजीर की छन छन नहीं सुननी पड़ेगी। खाना खाते वक्त ये शोर अच्छा नहीं लगता। अजीब बात थी, मगर मेरी हमदर्दी में थी, इसलिए मैं कुछ न बोला। अगली दफ़ा आया तो कहने लगा, चौधरी मना करता है, बोलता है जैसा है ठीक है। फिर कहने लगा, वो मालिक है, अगर वो बोलता है ठीक है तो फिर ठीक है, ऐसे ही काम चलाओ। उससे अगले रोज़ मैंने नौकर से कहा, मुझे कुछ पढ़ने को ला दो। वो बोला, मेरे पास तो 2-3 किताबें औलिया अल्लाह के हालात वाली हैं, क्या वो ला दूँ? मैंने कहा, वो सब मैं पढ़ चुका हूँ, औलिया अल्लाह के सब हालात मालूम है मुझे। सोच के बोला, एक अखबार फरोश है सरोज दहलवी, इससे कहता हूँ, वो पहले दिल्ली में रहता था। सरोज दहलवी खूब मेरे ज़हन में एक जैसे रोशनी से झिलमिलाना शुरू हुई। दिल्ली वाला अखबार फरोश, यहाँ का अखबार ईस्ट पाकिस्तान क्रॉनिकल, इसके एडिटर मेरे बाबा को जानने वाले, मेरी लाइन मिल सकती थी। नौकर इस सरोज दहलवी का बता रहा था। कहने लगा, दोस्त आदमी है, उर्दू में गाने बनाता है, वही मुझे कुछ किताबें ला देता है, कभी बंगला का अखबार बिल्कुल फ्री दे देता है। तुम किसी किताब का नाम लो, मैं इससे मालूम कर लूँगा। मैंने जल्दी से कहा, चौधरी को या बाजलर को मत बताना, वो किताब को मना कर देंगे। कहने लगा, मालिक लोग हैं, छुपाना बुरी बात है, मगर खैर तुम कहते हो तो मैं नहीं बताऊँगा। हाँ भला किताब में क्या है? मैंने एक मंसूबे की शक्ल अपने जहन में बनते देखी। मैंने नौकर से कहा, बंगला पढ़ने में मुझे मुश्किल होती है, एक पुर्जे पे उर्दू की 2-3 अच्छी किताबों के नाम लिख दूँगा, अखबार फरोश के पास होंगी तो वो दे देगा, नहीं तो किसी से ले आएगा, मैं पढ़ूँगा, सवाब इसे वो तुम्हें सबको मिलेगा। क्या ख्याल है, नाम लिख दूँ? बात इसकी समझ में आ गई। कहने लगा, ठीक है लिख दो। मैंने कलम कागज़ मंगवाकर इस पुर्जे पर जैसी फहरिस्त लिखी जाती है इस तरह उर्दू में सरोज दहलवी के नाम ये लिखा कि खुदारा मेरी मदद करो, मुझे फ़लाँ घर में इस तरह कैद में रखा गया है, खुदा रसूल का वास्ता ही पर्चा ईस्ट पाकिस्तान क्रॉनिकल के एडिटर को पहुंचा दो, पुलिस से किसी से भी जिक्र मत करो। नौकर पर्चा देकर कहने लगा, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने कहा, एक बार में जितनी किताबें आ जाए अच्छा है, तुम बार बार के जाने से बच जाओगे। सलील चौधरी का नौकर पर्चा ले गया। एक दिन एक रात गुजर गए। अगले रोज़ मैंने सरसरी तौर से पूछा कि अखबार फरोश की तरफ गए थे। कहने लगा, कामों से फुर्सत ही ना मिल सकी, आज जाऊँगा।
शाम में आया तो बोला, अखबार फरोश को तुम्हारा पर्चा मिल गया है। मेरे इस बंगाली हमदर्द ने यह पहली खुशखबरी सुनाई थी। हिजान में मैं रात देर तक जागता रहा। कुदरत ने यहाँ से रिहाई की अपील कर दी है। एक दो रोज़ में इस दज्जाल चौधरी से निजात मिल जाएगी। मैंने तय कर लिया कि रिहा होते ही बाबा को मुफस्सल तार भेज दूंगा। ये जो भी साजिश है, बाबा को इससे जल्द से जल्द आगाह होना चाहिए। शाम में एक दो मरतबा बाजरा भी 2 मिनट के लिए आया। गिराज में पड़े टूल बॉक्स से कुछ निकालना था। जितनी देर वो गिराज में रहा, मैं दीवार की तरफ करवट लिए चादर में मुंह दिए रहा। वो समझ रहा होगा सो रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मुझसे बात करे, मेरा चेहरा देखे। मैं नहीं चाहता था मेरे चेहरे के इत्मीनान देखकर इसे ज़रा भी किसी किस्म का शक हो। रात को मैं अपने आप में मगन सो गया। खुदा मालूम आधी रात गुजरने पर 3 या 4 बजे के करीब गिराज में एकदम रोशनी हो गई। मैंने बंगाली नौकर की आवाज़ सुनी। वो मुझे पुकार रहा था। फिर इसने कंधा पकड़कर हिलाया। मैं उठ बैठा। गिराज में सलील चौधरी बासलर और इसके 3 गुंडे मेरे बिस्तर के गिर्द इस तरह खड़े थे जैसे ताबूत ले जाने वाले खड़े हों, बिल्कुल मुस्तैद। नौकर में उठकर देखकर सर झुका के चला गया। हमारी कोशिश नाकाम हो गई थी। सलील चौधरी के हाथ में वो रुक्का था जो मैंने अखबार फरोश को लिखा था। चौधरी नाराज़ नहीं था। इसने तंज भी नहीं किया। रुक्का मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, शेर अली, मेरा नौकर बहुत सीधा आदमी है। ये वफादार भी बहुत है, इसलिए मैं इसे दूसरों से दुगनी तनख्वाह देता हूँ। बहुत ख्याल रखता हूँ इसका। आज सवेरे जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, इसने मुझे अपने काम से बाजार जाने की इजाज़त मांगी। मैंने कहा, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें बाजार छोड़कर निकल जाऊँगा। कहने लगा, ठीक है। फिर गाड़ी में कहने लगा, मुझे सदर बाज़ार में अखबार वाले के पास उतार देना। मैंने सोचा दिल्ली वाले से अपने लिए कोई किताब लेने जा रहा होगा। ऐसे ही पूछ लिया, क्या अपने लिए किताब लेने जा रहे हो? बोला, अपने लिए नहीं, शेर अली के लिए। इसे उर्दू की किताब चाहिए, वो बंगला नहीं पढ़ सकता। बस मैं समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने नौकर को कोई काम बता के पहले ही उतार दिया। इससे तुम्हारा ही रुका ले लिया और कह दिया कि किताब मैं लेता आऊँगा। मैं अपने जेलर की सूरत देख रहा था। कुछ कहना बेकार था। सलील चौधरी हल्के से मुस्कुराया, कहने लगा, शेर अली, मेरा नौकर सच्चा आदमी है, बहुत भोला भी। वो तुम्हें, मुझे, सबको सच्चा समझता है, मगर ये दुनिया अजीब तरह से बनी हुई है। तुमने इससे झूठ बोला और काम न निकाल सके, पकड़े गए। मैंने झूठ बोला और काम निकाल लिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, अच्छा चलो चलते हैं, जाने का वक्त आ गया है। मैं बिस्तर छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। चौधरी के आदमियों ने इससे चाबियां लेकर मेरी जंजीरें और हथकड़ियाँ खोल दी। चौधरी ने बाजलर को इशारा किया। वो बिल्कुल मेरे करीब आ खड़ा हुआ। चौधरी बोला, शेर अली, अभी तो तुम्हें याद होगा कि बाजलर किस तरह कंधे के पास से बाजू उतार देता है। मैं इसकी तरफ देखता रहा, बोला कुछ नहीं। बाजलर ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा कंधा थपक दिया, कहने लगा, जवाब दो, सर क्या कह रहे हैं? इनकी बात का जवाब दोगे? अगर याद नहीं तो याद दिला दूँ? हाँ, मैंने चौधरी से कहा, मुझे खूब याद है चौधरी, अपने इस बदमाश भतीजे से को बकबक बंद करे। बाजलर ने गुस्से से कोई आवाज़ निकाली होगी कि चौधरी ने हाथ उठा के से रोक दिया। मुझसे कहने लगा, याद है तो ठीक है, मगर बजरुर रहमान इस तरह तुम्हारे साथ साथ रहेगा, समझे? तुमने अखबार वाले को पर्चा लिखा, वो तो मैं माफ़ करता हूँ, मगर अब तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ पलक भी झपकी तो शेर अली, मैं तुम्हारा वो हाल करवाऊंगा कि बाजलर की उतरने वाली तकलीफ तो इसके मुकाबले में कोई तकलीफ नहीं होगी। आई समझ में? चौधरी की धमकियाँ खाली खोली धमकियाँ नहीं थी। मैं वाकई डर गया था। इन लोगों ने मुझे बंद गाड़ी में बिठाकर मेरे मुंह पर टेप लगाई और पैरों में जंजीर डाल दी। जैसा कि वादा किया था, चौधरी ने बाजलर को मेरे बराबर बिठा दिया। वो खुद आगे ड्राइवर के पास जा बैठा। तीनों मुसल्लह गुंडे मेरे दाएं बाएं जम गए और पिछली रात के घुप अंधेरे में और सन्नाटे में गाड़ी रवाना हो गई। 7-8 दिन पहले चौधरी ने सरहद पार कराने का जो मंसूबा बनाया था, आज इस पर अमल किया जा रहा था। गाड़ी 6-7 घंटे बराबर चलती रही। दिन निकल आया था और धूप में तेजी आ चली थी। मुझे गर्मी से परेशानी हो रही थी। आवाज़ों से पता चल रहा था कि गाड़ी जंगल वीराने से गुजर रही है। आखिर किसी नाले की तलपटी में गाड़ी रोक दी गई। चौधरी ने भतीजे को आवाज़ दी और मुझे जंजीर और टेप के साथ उतार लिया गया। हर तरफ सन्नाटा था। ये इनका जाना पहचाना इलाका होगा, क्योंकि चौधरी और इसके कारिंदे बहुत इत्मीनान से चल फिर रहे थे। खाना पकाने की तैयारियां कर रहे थे। खाना खाकर मुझे खिलाकर कुछ देर सस्ताने के बाद वो फिर चल पड़े। मगरिब से कुछ देर पहले हम एक बार और रुके होंगे कुछ खाने पीने को। फिर जो चले तो 10-11 बजे रात को जंगल में रुके। बाजलर ने उतरने से पहले इत्मीनान कर लिया था कि मेरे पाँव की जंजीर और मुंह पर लगा टेप दुरुस्त है। उतरने से पहले इसने मुझे खबरदार कर दिया था कि हम सरहद पर आगे हैं, बहुत एहतियात से उतरना, गड़बड़ की तो चोट खाओगे। लंबे सफ़र में वैसे ही मैं बेहाल हो रहा था। मैंने खुद को हालात के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने गाड़ी से उतारकर मुझे जिस तरह बिठा दिया था, मैं बैठा रहा। तीनों गुंडे और बाजलर मुझे छोड़कर गाड़ी में खामोश जा बैठे थे। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे, पर्दे गिरा दिए थे। चौधरी मेरी जंजीर थामे एक गिरे हुए दरख्त के पास बैठा रहा।
कोई आधे घंटे बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई। सामने कोई नहीं आया। किसी ने बंगला जुबान में पुकार कर पूछा, यहाँ कौन बैठा है रे? कौन हो तुम लोग? चौधरी ने ऊंची आवाज़ में कहा, इंस्पेक्टर मौजूदार का मेहमान आया है, हम मौजूदार का इंतजार कर रहे हैं। झाड़ियों में से वही आदमी हंसा और बोला, इधर सभी मौजूदार के मेहमान हैं, भला अपना नाम तो बताओ। सलील चौधरी कहने लगा, शेर अली नाम है मेरा, आज 16 तारीख को मुझे उधर आना था। झाड़ी में सरसराहट हुई और 3 मुसल्ला वर्दी पोश कारिंदों के साथ एक काला भुजंग आदमी बंगाली कुर्ते और चौखाने वाली तहमद में कांधे से हल्की मशीन गन लटकाए निकला और हमारी तरफ आया। इसने चौधरी को पहचानने इसका हालचाल पूछा। बोला, क्या हाल है शेर अली साहिब, खैरियत तो है? वो चौधरी को शेर अली कह रहा था। किसी किस्म के इशारे तय किए होंगे जिनके मुताबिक बातें की जा रही थी। चौधरी अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर तहमद वाले की तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, ये मौजूदार साहिब की चीज़ लेकर आए होंगे इन लोग। तहमद वाले ने पैकेट जेब में डाले। बोला, शेर अली भाई का और मौजूदार का हिसाब दोस्तों जैसा है, हम क्या गिने? चौधरी हंसा। मेरी जंजीर तहमद वाले के हवाले करके बोला, अच्छा तो इसे संभालो। तहमद वाले ने जंजीर अपने साथ वाले एक वर्दी पोश को पकड़ा दी। फिर अपने आदमी से बोला, अरे इसकी शक्ल पर जरा लाइट तो दिखाना रे। एक ने टॉर्च की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर डाली। तहमद वाला बोला, अभी छोटी उम्र का है, मगर देखो तो कैसे कैसे कामों में पड़ गया है साला। चौधरी ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया। तहमद वाला हंसा, बोला, थैंक यू भाई। अच्छा शेर अली साहिब, मौजूदार को हम आपका सलाम बोल देंगे, कोऑपरेशन का शुक्रिया। सलील चौधरी ने कहा, शुक्रिया तो हम आप लोगों का अदा करेंगे भाई, बड़ी मेहरबानी। वो हंसता हुआ गाड़ी में जा बैठा और ड्राइवर ने लाइट जलाए बगैर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर वो लोग गाड़ी घुमाकर अंधेरे में गायब हो गए। कुछ देर इंजन की आवाज़ सुनाई देती रही, फिर जंगल की आवाज़ों के सिवा सन्नाटा छा गया। मालूम नहीं ये किस तरफ के बॉर्डर वाले थे। इनकी बंगला मेरी तरह बेदाग थी। ये लोग मशरक़ी पाकिस्तान बॉर्डर पुलिस के कारिंदे भी हो सकते हैं, बर्मी सरहदी पुलिस के भी। मुझे मालूम था इस तरफ बॉर्डर के एहलकार दोनों जुबानें बड़ी रुबानी से बोलते थे। कहा नहीं जा सकता था कि बर्मी है या बंगाली। वर्दी वालों में से एक टॉर्च दिखा रहा था, एक मेरी जंजीर था। मैं मवेशी की तरह मुझे हंकाए ले जाता था। तहमद वाला और तीसरा आदमी खामोशी से पीछे पीछे आ रहे थे। आधे घंटे से ज़्यादा हम जंगल झाड़ी में चलते रहे। आखिर सामने हल्की सी रोशनी नजर आई। तहमद वाले ने मुंह पर हाथ रखकर किसी जंगली परिंदे की आवाज़ निकाली। 2-3 बार इसने ऐसा किया तो सामने से भी वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। तहमद वाले ने बर्मी में पुकार कर कहा, हम आ रहे हैं। आवाज़ आई, आ जाओ सर। पानी भरे नाले से गुजरकर हम ऊंची जगह पर पहुंचे तो मैंने देखा कि किसी किस्म की चेक पोस्ट थी और हमारे पहुंचते ही कोई जनरेटर चला दिया गया। बहुत सी ट्यूबलाइटें रोशन हो गई। मैंने देखा टीले पर 4-6 बैरकें बनी थी। दरमियान में एक चबूतरे पर झंडा लगाने का पोल था। चबूतरे के सामने एक बड़ा सा कमरा और बरामदा था। बरामदे के स्तून पर बोर्ड नस्ब था जिस पर बर्मी ज़ुबान में चेक पोस्ट का नाम और नंबर लिखा था। मैं बर्मा पहुंच गया था, यानी सलील चौधरी ने मुझे मशरक़ी पाकिस्तान से निकाल दिया था। तहमद वाला अफसर एक बैरक में चला गया। तीनों हथियारबंद सिपाही मुझे लॉकअप के सामने ले गए। लॉकअप पर बाहर कहीं से तेज़ रोशनी फेंकी गई। एक वर्दी पोस्ट ने मेरी तलाशी ली। मेरे पाँव की जंजीर खोलकर मुँह का टेप हटाकर इसने मुझे अंदर धक्का दे दिया। फिर लॉकअप का आहनी दरवाज़ा बड़ी आवाज़ से बंद कर दिया। कुफल लगा दिया गया। रोशनी भी बंद कर दी गई। सिपाहियों में से एक ने सलाखों के पार से रूखेपन से कहा, तुझे पानी पीना तो भी बता दे, मैं ड्यूटी उतर रहा हूँ, पिला दूंगा। मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो फर्श पर थूकता जमाही लेता चला गया। मैंने तेज़ रोशनी में देख लिया था कि लॉकअप में लोहे का एक ही पलंग बिछा है। पलंग पर दरी बिछी थी। एक कंबल तय करके तकिए की जगह रख दिया गया। पांची की तरफ एक मैली सी चादर पड़ी थी। पलंग के सिवा लॉकअप में और कुछ नहीं था। थकन और नींद से लड़खड़ाता मैं बिस्तर पर जा बैठा और जूते मोजे उतार कर लेट गया। ये मेरा कैद खाना था। मैं अब तक चौधरी के और इसके बदमाशों के पास बाज़ाब्ता कायद में रहा था। अब ये लाकम मिली, गनीमत इस पर किसी हुकूमत का नाम तो लिखा था। हिजान से निढाल और थके हुए ज़हन ने अगले पिछले मसाइल पर सोचने से इनकार कर दिया। मैंने खुद से कहा, शेर अली खान, नींद बहुत ज़रूरी है, सो जाओ, आगे जो होगी देखी जाएगी। मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा सोया हूँगा कि किसी अनहोनी बात से बेदार हो गया। कोई मुझे पलंग से गिरा देता था। मैंने घबरा कर पांती की पट्टी थामी और इसे जो अपने बदन से ठिलठिल करके मुझे गिरा देना चाहता था, हाथ बढ़ा के और जोर लगाते हुए खुद से दूर करने की कोशिश की। मैं भी नींद में था, झुंझुलाया हुआ था। झुंझुलाहट नींद के खुमार में मुझे कुछ अजीब सा लगा, कुछ नर्म और गर्म सा, और यूँ लगा कि दूसरा जो भी है वो नींद में नहीं है। मुझसे दूर हटने के बजाय इसने दूसरा हाथ बढ़ाकर खुद को मुझे और भिड़ा लिया। इस तरह मैं गिरते गिरते संभल गया था। मगर वो जो कोई भी था जिसने मुझसे खुद को भिड़ा रखा था, बहुत अजीब सा था, नया नया और अजीब सा, और वो हंस रहा था। मैंने अधकच्ची नींद में इसे हंसते सुना और मेरे नींद भरे दिमाग में जैसे चमक कर
हाथ पैरों को हुक्म दिया, उठ जाओ। मैं चौंक पड़ा और इसे, जो मुझसे भिड़ा हुआ था, झटके से हटाते हुए पलंग पर उठ के बैठ गया। लॉकअप में बत्ती नहीं थी, मगर बरामदे से आती रोशनी में वो जगह इतनी जरूर उजल गई थी कि मैंने इसे देख लिया। मैंने देखा वो जो पलंग पर था, जो हंस रहा था, मर्द नहीं कोई लड़की है। लड़की भी क्या, अच्छी खासी खाई पी औरत। अब वो तकरीबन पूरे पलंग पर कब्जा की लेटी थी और हंसी जा रही थी। मैंने घबराकर पलंग से उतर जाना चाहा। इसने हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। ठहरो, कौन हो तुम? मैंने लपट कर पूछा। वो बोली, बुलारी। बुलारी? बुलारी कौन? वो हंसी, तुझे याद नहीं मेरे साथ कैसी कैसी तस्वीरें उतरवाई थी? बेशरम, और अब पूछता है बुलारी कौन? खुदाया, ये कौन औरत घुसाई है? वो लोग लॉकअप में मुझे चैन नहीं लेने देते। ये सब क्या है? क्या भला है ये? मगर हाँ बुलारी, अच्छा ये औरत है जिसे सलील चौधरी ने मेरे साथ फरार होने और बर्मा में दाखिल होने वाली का पार्ट दिया है। चौधरी के शैतानी मंसूबे में मेरी ये दाश्ता का रोल कर रही है। मैं जोर से इसका हाथ झटक कर पलंग से उठ खड़ा हुआ। हट जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चलो। जवाब में वो फिर हंसी। बोली, शेर अली, दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। तू मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहा है? यहाँ मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आई। इन लोगों ने हम दोनों को बॉर्डर पार करते पकड़ा और बंद कर दिया। तेरे जाओ जाओ कहने से मैं बाहर तो नहीं जा सकती। बिल्कुल भी नहीं। ये औरत कहती है दोनों को बॉर्डर पार करते पकड़ा है। जाहिर है अपने मालकों का बताया हुआ मुकालमा दोहरा रही है। मैंने कहा, सुन, न मैंने बॉर्डर पार किया है न तूने। मुझे पकड़ कर लाया गया है और तू पैसे लेकर नाटक करने आई है। बेहतर यही है कि तू पलंग से उतर जा, नहीं तो बहुत बुरी होगी तेरे साथ। वो हंसी, फिर एक आंख दबा के कहने लगी, सोने क्यों नहीं देता मुझे? सोने न देना, तू भी सो ले, बहुत थक गया होगा। जी चाहा मुंह पर चांटा रसीद करूं, मगर मुझे सिखाया गया था कि औरत पर हाथ नहीं उठाया जाता। मैंने बहुत गुस्से में कहा, अगर तू बिस्तर से नहीं उतरी तो उठा के नीचे फेंक दूंगा। वो फिर बाजारी अंदाज में आंख दबाकर बोली, उठा ले। हाँ, मुझे उठाकर देख, इतनी नहीं हूँ, आ कोशिश कर ले। ये मुझे किस परेशानी में डाल दिया है। पहले सोचा इस तहमत वाले अफसर मौजूदार को आवाज़ देकर कहूँ कि इस औरत को यहाँ से निकाले, मगर फिर ख्याल आया वही लोग उसे यहाँ छोड़कर गए हैं, तो खुद से तो नहीं आई होगी। मैंने झुंझुलाहट में हाथ बढ़ाकर औरत का बाजू पकड़ा और झटके से धकेलकर इसे पलंग से गिरा देना चाहता था, मगर वो भारी थी तो खुद भी जोर लगा रही थी। इसे थोड़ा ही खींच पाया, उतार नहीं सका। औरत ऐसे हंसी जैसे हम दोनों कोई खेल खेल रहे हों। इसे झटका देकर उल्टा जी बिस्तर पर खींच लेना चाहा। मैंने पट्टी पर पैर अड़ा लिया। अजीब तरह की खींचातानी हो रही थी। ये सब करते हुए औरत बुलारी कह के मारकर हंसी ठिठोल करती थी। लॉकअप के बाहर अंधेरे में किसी ने बर्मी पुकार कर कहा, अरे आराम से, इधर मस्ती क्यों कर रहे हो? ये कोई बदमाशी का अड्डा नहीं, लॉकअप है। मैंने भी गुस्से में बबरी जुबान में कहा, इससे बड़ा बदमाशी का अड्डा और क्या होगा? इस रंडी को मेरे साथ क्यों बंद कर दिया? पुकारने वाले ने मज़े से कहा, ये तो पहले सोचा होता, इसे तो तू लेकर भागा है, तू ही लाया है। रंडी मंडी जो भी है तेरी ही पसंद की है। अब शोर नहीं कर, जैसा भी है जो भी है, इधर आराम से रहो दोनों। मैंने गुस्से में से गधा कह दिया। वो कोई ढीठ आदमी था, बोला, गधा तो तू रे, अपने से बड़ी औरत को दुड़ाई लिए फिरता है। अरे इधर ईस्ट पाकिस्तान में तेरी उम्र की कामनी नारियों की कमी है जो तू ये पक्का नारियल तोड़ लाया। औरत ठट्ठा मार के हंसी। अपनी कच्ची पक्की बर्मी में पुकार कर इसने अपनी तारीफ करते हुए कोई फजूल सी बेहुदा बात कही जो इसकी जिस्मानी सलाहियतों के बारे में थी। जवाब में लॉकअप के बाहर सिपाही ने कहका मारा और इस बात को जरा खुलेपन से आगे बढ़ा दिया। औरत गाली दे के हंसने लगी। औरत मर्द को इतनी खुली डुली बातें करते मैंने कभी नहीं सुना था। दोनों को इस तरह की नामाकुल बातें करना अच्छा लग रहा था। मैं पलंग पर नहीं बैठ सकता था। मैंने गुस्से में चादर और कंबल खींच लिया और लॉकअप के कोने में कंबल फर्श पर डालकर अपने लिए बिस्तर सा बना लिया। मज़ीद सामीने हज़रात, जानवर की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।